گزشتہ جمعے میں سفر ہجرت کے اسباب کے عنوان سے چند معروضات آپ کے گوشِ گزار کی تھیں۔ اسی سفر ہجرت کا پہلا حصہ وہ آج کا عنوان ہے۔ گزشتہ جمعے کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور مکہ والوں کی جو امانتیں تھیں ان کی رکھوالی کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہے اور آپ کے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے گھر آمد پر بڑے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت سے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سفر ہجرت میں آپ کا ساتھی کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، آپ میرے اس سفر کے ساتھی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ملا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر یہ کہا ہے؟ کہا ابوبکر صدیق، بالکل، آپ ہی میرے سفر کے ساتھی ہوں گے۔ قصہ مختصر یہ، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، پورے واقعے کو سمیٹنا بھی ہے، اور چونکہ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اسی سفر ہجرت پر ہی ہوگا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 2 اونٹنیاں وہ تیار کی، اور اس سے پہلے گھر والوں سے یہ کہا کہ اس سفر کے اندر جس توشہ کی ضرورت پڑے گی، سامان کی جو ضرورت پڑے گی، لہٰذا اس کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ گھر کے اندر جو بھی جمع پونجی تھی، پیسے وغیرہ، تو ان کو ایک تھیلی کے اندر بند کر دیا، اور اسی طرح سفر کے دوران میں کھانے پینے کی جو اشیاء تھیں ان کو بھی ایک تھیلی کے اندر جمع کر دیا گیا۔ اب جب تھیلیاں 2 تیار ہو گئیں، اس کو باندھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی کپڑا موجود نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فوراً اپنا کمر بند جس سے کمر کو باندھا جاتا ہے، اس کپڑے کو کھول کر اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہیں، ایک ٹکڑے سے ایک کو باندھتی ہیں، دوسرے سے دوسرے کو باندھتی ہیں۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کا اس کے بعد یہ لقب پڑ گیا، ذات النطاقین، 2 ٹاکیوں والی، 2 ٹکڑوں والی۔ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے کہ انہوں نے اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زاد سفر تیار کیا گیا تھا، اس کو اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑوں سے اس کو باندھا، اور پھر آج تک بلکہ قیامت تک جب سید اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جائے گا تو ساتھ ذات النطاقین، یہ ان کا لقب پڑ گیا جو قیامت تک رہے گا۔
जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान को बुलाया, कहा कि बेटे तुमने इधर ही रहना है, दिन भर मक्का वालों के दरमियान चक्कर लगाना है ताकि हमें खैर ख़बर पता चल सके। रात को आकर आपने हमें आकर ख़बरदार करना है, बतलाना है कि मक्का वालों की नशस्त व बर्खास्त क्या है और उनकी सोच क्या है और उनके अज़ाइम क्या हैं, हमें आपने उनसे ख़बरदार करना है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो ग़ुलाम थे उनको ताकीद की गई कि आपने दिन भर जो है वो बकरियां चरानी है उसी इलाके में, ताकि कदमों के निशानात भी मिट जाएं, और रात के वक़्त आपने उस गार के पास आना है जहां हमने ठहरना है, ताकि ताज़ा दूध जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमा सकें। पूरा घराना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत पर मामूर था। सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए तैयार हुए। ख़ुद अबू बकर सिद्दीक और उनके बेटे, सारे घर वाले और उनकी बेटी और उनके ग़ुलाम, वो सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के ऊपर मामूर हो गए। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए। चलते चलते अब चूँकि वो जो सफ़र था, वो जो रास्ता था, वो आजकल के रास्ते नहीं थे। आजकल तो कारपेट सड़कें बन गई हैं। अब तो बिल्कुल सफ़र सिमट कर रह गया है, फासले मिट चुके हैं, तेज़ तरार गाड़ियां हैं जो उन पर चल रही हैं। ज़रा अंदाज़ा कीजिए उस दौर का, जब इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सफ़र पर रवाना हुए। कांटेदार झाड़ियाँ उस सफ़र में थीं, नोकीले पत्थर थे। रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव ज़ख्मी हो चुके थे। खुद अंदाज़ा कीजिए कि पाँव ज़ख्मी हों सफ़र के दौरान में तो कितनी तकलीफ़ होती है। क़ुरबान जाऊँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईसार पर, मोहब्बत पर, वफ़ादारी पर, कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाँव की तकलीफ़ महसूस फरमा रहे हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कंधों के ऊपर सवार हो जाइए। यहाँ कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। कोई कहता है कि देखो पीछे मक्का में अमानतें सुपुर्द सैयदना अली उल मुर्तज़ा की तरफ की गई, तो इसीलिए सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं। हम कहते हैं कि उनकी भी शान बड़ी आला है, वो बड़ी शान वाले हैं, बड़ी निराली शान वाले हैं कि इमामुल अंबिया ने पीछे उनको छोड़ा। लेकिन ज़रा इधर भी तो देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इमामुल अंबिया ख़ुद चल कर उनके घर तशरीफ़ ले गए, और इधर देखिए रास्ते के अंदर ख़ुद भी वो उनके पाँव ज़ख्मी हैं। अपने ज़ख्मी पाँव की परवाह नहीं है, परवाह है तो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ख़ुद नीचे बैठ गए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कंधों के ऊपर सवार हो जाइए। आज नबुव्वत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर, कितनी बड़ी शान की बात है, कितने बड़े एजाज़ की बात है। जब हम एजाज़ और शान की बात करते हैं, सैयदना हसनैन करीमैन की फ़जीलत का बयान करते हैं कि कुर्बान जाऊँ उन अजीम हस्तियों पर कि जो इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इधर देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर कुर्बान जाऊँ कि इमामुल अंबिया सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज उनके कंधों के ऊपर सवार हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे हैं रास्ते पर। गार सौर, जो हज और उम्रे की जिन्होंने सआदत हासिल की है उनके इल्म में है कि गार सौर कितनी बुलंदी पर है। आजकल जदीद दौर है, रास्ते भी बने हुए हैं,
रास्तों का तयन किया गया है, पत्थर लगे हुए हैं, बतलाया गया है कि इसी रास्ते पर चलते हुए आप गार सौर पर पहुँचेंगे। उस वक़्त ये रास्ते बने हुए नहीं थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत से लबरेज़ होकर ईसार और वफ़ादारी की मिसाल कायम करते हुए अपने कंधों के ऊपर इमामुल अंबिया को सवार करते हुए उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, सफ़र तय करते हैं, यहाँ तक कि गार सौर के करीब पहुँच जाते हैं। जब गार सौर के करीब पहुँचते हैं तो चूँकि अंदर जाना था, वहीं पर रहना था, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन कह दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ रखिए यहाँ, मैं अंदर जाता हूँ, उस गार का जायज़ा लेता हूँ। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर जाते हैं, अंदर गार की सफाई करते हैं, बिलें वहाँ पर बनी हुई होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के सुराख होते हैं, अपने कुर्ते को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और एक एक टुकड़ा जो है उस सुराख के अंदर रख देते हैं, यहाँ तक कि वो कुर्ता सारा ख़त्म हो जाता है, एक सुराख फिर भी बाकी रह जाता है। तो जब बिल्कुल अंदर से सफाई मुकम्मल हो जाती है, मुतमईन हो जाते हैं, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकलते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंदर तशरीफ़ लाइए। जब इमामुल अंबिया अंदर तशरीफ़ लाते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूँ बैठ जाते हैं और अपनी गोद को आपका सरहाना बनाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम फरमाइए। और जो एक सुराख रह चुका था उसके अंदर अपनी एड़ी को रखते हैं ताकि कोई मूज़ी चीज़ वहाँ से ना निकले जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचे। अब इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गोद के अंदर सर रख कर आराम फरमा रहे हैं। ज़रा देखिए, मोहब्बत देखिए। और यहाँ पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। एक मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी 3 ख्वाहिश का इजहार किया और उनमें से एक ख्वाहिश ये थी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाहिश है आँखें अबू बकर सिद्दीक़ की हों और चेहरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो और मैं इसका जी भर के दीदार कर सकूं। और आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख्वाहिश को भी पूरा फरमा दिया कि नबुव्वत वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के गोद के अंदर सर रखे हुए हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज जी भर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमा रहे हैं। ये कितनी बड़ी सआदत की बात। कैसे देखा होगा मोहब्बत के साथ कि गोदी के अंदर सर रखा हुआ है और अबू बकर सिद्दीक़ ने टिकटिकी बांध कर इमामुल अंबिया के चेहरे के ऊपर नज़र रखी हुई है। इतने में एक मूज़ी जो वहाँ उस सुराख पर जिस पर एड़ी रखी हुई थी वहाँ से वो निकलता है, आगे देखता है तो कोई चीज़ है, एड़ी थी, उसके ऊपर वो डंक मारता है। एक डंक मारता है, दूसरा मारता है, एक के बाद दीगर है, चंद डंक जब मारता है तो जाहिर है कि ये इंसानी फितरत है। आखिर तो इंसान ही होता है, तकलीफ़ तो उसे होती है ना। फिर डंक मारे सांप तो उसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा होती है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डंक महसूस कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपने पाँव को जुम्बश नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के अंदर कोई खलल ना पड़ जाए। ये मोहब्बत की इंतहा है, ये इश्क की इंतहा है, ये वफ़ादारी की इंतहा है। ख़ुद तकलीफ़ बर्दाश्त करना और महबूब के जिस्म पर ज़रा बराबर भी कोई आँच न आने देना। ज़ाहिर है जब शिद्दत बढ़ी, शिद्दत की वजह से इंसानी फितरत का तकाज़ा है कि इंसान को जब तकलीफ़ होती है तो आँखों से आंसू जारी होते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके आँखों मुबारक से आंसू टपक पड़े। अब चूँकि गोद में इमामुल अंबिया थे, जैसे ही वो आंसू का कतरा नीचे टपकता है इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर पर, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पर ये कतरा पड़ता है आंसू का, इमामुल अंबिया की आँख खुल जाती है। यूँ देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा लक या अबा बकर,
اے ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں۔ کہا کچھ تو ہوا ہے، یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جو جاری ہو رہے ہیں، کچھ تو وجہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موذی نے ڈنک مار دیا ہے، جس کی شدت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدشہ تھا کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو فوراً امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر اپنی ایڑی کو آگے کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنی ایڑی آگے کرتے ہیں، جس جگہ پر سانپ نے ڈنک مارا تھا وہاں نبوت نے اپنا لعاب مبارک وہاں پہ لگایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب امام الانبیاء کا لعاب مبارک میری ایڑی پر لگا، خدا کی قسم مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کبھی مجھے کوئی اس قسم کی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ ایسے محسوس ہوا کہ گویا کہ کبھی مجھے تکلیف اس قسم کی پہنچی نہیں تھی۔ اور پھر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غار کے اندر قیام پذیر ہوئے۔ ادھر مکے والوں کی کیا حالت تھی؟ وہ نوجوان باہر کھڑے ہوئے تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے۔ کافی انتظار کرنے کے بعد کسی نے بتایا کہ تم انتظار کر رہے ہو، وہ تو چلے گئے۔ کہا کہاں چلے گئے؟ ہماری موجودگی میں کیسے چلے گئے؟ انہوں نے کہا صرف گئے نہیں ہیں بلکہ تمہارے سروں کے اوپر خاک ڈال کر گئے۔ وہ گزشتہ جمعے میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی نا، وہ آیت کریمہ پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو سلب کر دیا تھا۔ امام الانبیاء خیر و عافیت وہاں سے نکل پڑے تھے۔ جب وہ اندر گئے تو کہا کہ اندر کون سویا ہوا ہے؟ اندر گئے، چادر اٹھائی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ جہاں جانا تھا چلے گئے۔ کہا کہاں گئے ہیں؟ جہاں جانا تھا اور جہاں ان کو حکم تھا وہ چلے گئے ہیں، بتایا نہیں۔ اور ادھر مکہ والے جب ان کو پتہ چلا، بڑے بڑے رؤساء جو رئیسین تھے، ان کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ غصے میں لال پیلے پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اگر کسی نے بھی ہمیں آ کر خبر بتلا دی، ابو جہل نے اعلان کیا تھا، کسی نے خبر دی یا ان کو پکڑ کے لایا یا ان کو قتل کر کے لائے ہمارے پاس، ان کو 200 اونٹ دیے جائیں گے، سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ ایک شخص کی سر کی قیمت رکھی گئی، دونوں کی 200 اونٹ کی جو ہے وہ قیمت رکھی گئی۔ انعام کا لالچ جب سنا تو سارے ادھر ادھر بکھر گئے، تلاش کے اندر چل پڑے۔ کسی نے آ کر مکے والوں کو خبر دی کہ ہم نے دیکھا ہے وہ ساحل کی جانب کچھ 2 شخص جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب انہوں نے سنا کہ اس طرف جا رہے ہیں 2 شخص، جب خبر سنی تو فوراً کہنے لگے کہ میں ان 2 شخصوں کو جانتا ہوں، یہ وہ 2 نہیں ہیں۔ انعام کا لالچ جو تھا، کہا کہ اس انعام کو میں حاصل کرنے والا بن جاؤں، یہ نیت تھی اس وقت۔ کہا کہ وہ 2 نہیں ہیں جو تمہیں مطلوب ہیں، وہ 2 کوئی اور ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، لہٰذا آپ بیٹھیے، اس طرف نہ جائیے۔ اور خود جو ہے حضرت سراقہ چل پڑتے ہیں، تیز رفتار گھوڑا منتخب کرتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، اور اس جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار سور کے اندر رہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان مکہ والوں کو خبر پہنچتی ہے، اور اس سے پہلے بھی مکہ والے تلاش کے اندر، جستجو کے اندر اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر اس کی تفصیل یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ غار سور کے قریب پہنچ چکے تھے، وہ دشمن بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اگر تھوڑا سا بھی نیچے جھک جاتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اندر غار کے اندر ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقلوں کو سلب کر دیا تھا، ان کی عقل کے اوپر پردہ آ چکا تھا۔
अबू जहल ने आगे बढ़कर कह दिया कि ज़रा गार के अंदर तो देखो, कहीं इसके अंदर ना हो। तो किसी कहने वाले ने कह दिया कि भाई अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर देखो मकड़ी ने जाला तना हुआ है, कबूतर ने अंडे डाले हुए हैं, अगर कोई अंदर होता तो ये मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती, कबूतर अंडे कैसे देती। उसने कहा हाँ बात तो ये तो ठीक है। जब अल्लाह तबारक व तआला अक़ल सलब करने पर आते हैं ना तो फिर इस तरह फरमाते हैं, वहाँ से वो चल पड़ते हैं। लेकिन जब साहिल की ख़बर उन तक पहुँचती है तो हज़रत सुराक़ा बिन मालिक जो अभी मुसलमान नहीं हुए, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ब में चल पड़ते हैं, यहाँ तक कि उनकी नज़र जो है इन पर पड़ जाती है। अब जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि दूर से घुड़सवार आ रहा है, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्स हमारे ताक़ब में आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर डरने की ज़रूरत नहीं है, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ पर ये जुमला जो कुरान मजीद की आयत बना और इसमें जो लफ्ज़ ज़िक्र किया गया है वो है माअना, अल्लाह पाक हमारे दोनों के साथ है, हम दोनों के साथ है। और उधर बनी इसराइल का जब तज़किरा होता है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के हमरा जब वहाँ से हिजरत करते हुए जाते हैं, पीछे फ़िरौनियों का लश्कर होता है, आगे दरिया आ जाता है। जब फ़िरौनी करीब पहुँच जाते हैं तो बनी इसराइल कहते हैं कि अब तो हम पकड़े गए। तो वहाँ पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो अनकरीब मेरी रहनुमाई करेगा। वहाँ पर बनी इसराइल को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ शामिल नहीं किया, माइया का लफ्ज़ ज़िक्र है कि अल्लाह मेरे साथ है। और चूँकि इसके अंदर मुफस्सिरीन किराम वो नुक्ता बयान फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ माइया का लफ्ज़ ज़िक्र किया, माअना का लफ्ज़ ज़िक्र नहीं किया। और उसकी वजह ये थी कि बनी इसराइल के अंदर वो वफ़ादारी मौजूद नहीं थी। और इधर इमामुल अंबिया ने माअना का लफ्ज़ ज़िक्र किया और दुनिया वालों को ये बतला दिया कि अबू बकर सिद्दीक़ सिर्फ मेरे साथी ही नहीं हैं बल्कि साथी भी हैं और सबसे बड़े वफ़ादार साथी हैं, कि अल्लाह ताला जिस तरह मेरे साथ है इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ के भी साथ है। ला तहज़न